एंड सिलेक्शन। सब तो पहले गल करते हैं रिक्रूटमेंट की होंगी। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, attracting, interviewing, selecting, hiring the employees for the best job in the organization। जो कंपनी जो भी जॉब्स होंगे उन्होंने जो एम्प्लॉइज हायर करे जाते हैं उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही कहने हैं। रिक्रूटमेंट किन्ने प्रकार की होगी? सब तो पहले इंटरनल रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इंटरनल होगी जो कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਰਿਟੇਨਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਰਿਟੇਨਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਰਮ ਤੋਂ ਹੀ EMPLOYEES ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਟੇਨਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰਮ ਤੋਂ EMPLOYEE ਜੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫਿੰਗ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ EMPLOYEES ਹਾਇਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆਊਟਪਲੇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਆਊਟਪਲੇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ EMPLOYEES ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ EMPLOYEES ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪਲੇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਅਗਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਸਟ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਾ, ਬੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ EMPLOYEE ਜੋ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਸਨ ਆਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਜੌਬ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYEES ਹੈ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ EMPLOYEES, ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਜੌਬ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇਮੇਜ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ EMPLOYEES ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਹੋਊਗਾ EMPLOYEES ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਇਮੇਜ ਆਫ ਜੌਬ, ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੌਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ EMPLOYEES ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੌਬ ਲਈ EMPLOYEES ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ 7 ਟੌਪਿਕ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਏਜ, ਰਿਲੀਜਨਸ, ਲਿਟਰੇਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਜੋ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ, ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ ਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੀਗਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਲੀਗਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ SC BC OBC ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ EWS ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, EMPLOYEE ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
फिर है कहना रिक्रूटमेंट प्रोसैस। अगर तुम कंपनी च रिक्रूटमेंट करनी है तो प्रोसैस की होगा, सब तो पहला है जॉब डिजाइन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਿੰਗ ਜੌਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਰਿਜ਼ਿਊਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਜੌਬ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਆਰਡਰ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਰਡਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਮੈਥਡ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਨਡ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸਨਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਹਾਂ ਸੂਟੇਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਘਟੂਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇੰਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਿਮੈਰਿਟਸ ਇਹ ਲਿਖेंगे ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਚੋਇਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਲਿਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਸਨ ਲਿਆਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਨਸਰਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪੀਪਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪੀਪਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੰਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੋਰਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਦਾ ਰੱਖ ਲਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈਵਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋਬ ਲਈ ਆਫਰਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਡ ਚੋਇਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਡ ਚੋਇਸ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਬਲੱਡ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਬਲੱਡ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਸਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋਗੇ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਰਡਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੇਸ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਰਸਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਡੀਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਜੋਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਔਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੀਨਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਖੁਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਗੇਟ ਹਾਇਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਨਸੋਲਿਸਿਟਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ, ਵਾਲਕ ਇਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਚੈਲੰਜਸ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਊਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਅਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਏ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਕਰਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ EMPLOYEE ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਲਾਉਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟੈਸਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਰੱਖੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਟੈਸਟ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਗੋਲਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਜੌਬ ਲਈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਕੁਝ ਜੌਬ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸਮਝੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜੌਬ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜੇ ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ।
फिर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस, एक्चुअल जो बंदे ने कहा कि मैं इस कंपनी ने टाइम काम किया है तो मेरी इन्नी सैलरी सी, कोई बंदे फेक बना के भी ले आने था, असं जॉब इनकी बैकग्राउंड चेकअप भी कर सकते हैं, वो कंपनी तो कॉल भी कर सकते हैं। मोस्टली ऐसी कंपनियां पुछते हैं जी कंपनी गई उत्थे किसी का नंबर दे सूँ जो थोड़ा पर्सन जानता होगा तो असं नंबर दे भी देना, तो वो कॉल जरूर कर देंगे इंटरव्यू चेक करने लिए एक्चुअल जो थोड़े कोल पर्सन इंप्लॉय काम करता सी या नहीं करता सी, इदा ना हो अपने घर का नंबर दे के आ जाओ कह देना साडे कोल काम करता सी है। जब आप किसी अच्छी जॉब पोजीशन पे जाएंगे तो ये सब लेवल चेक करते हैं। तो उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका जॉब इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, मतलब मान लो मैं लास्ट जॉब पे लड़के लड़के छोड़ी, मुझे नहीं पसंद, वो मुझे जाने नहीं देना चाहते हैं, मैं उनसे बैलेंस करके छोड़ा, वो तो फिर बैड एक्सपीरियंस देंगे, हमारा वहाँ जॉब सिलेक्शन नहीं होगा। सब जगह नहीं होता ना, सब जगह पूछेंगे। मैं ये बता रहा हूँ भी हाँ, मान लो कोई अच्छी जॉब पे जा रहे हो, हो सकता है पूछ ले, फिर वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कुछ हो सकता है जब वो कंपनी के एक स्टेटमेंट पे एम्प्लॉय का जॉब, मैं वही आगे कंफर्म करता हूँ। आपका अगर बैकग्राउंड पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपका नेगेटिव इंप्रेशन डाला है उसका जॉब से, आपसे रीजंस पूछे जाएंगे आपका, तो आपने बताया ये कुछ है, आप रीजंस दे दीजिए भी आपने कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, रीजंस पहले ही पूछ लेंगे। अगर आप वो चीज पहले ही क्लियर करके बताओगे कि ये रीजन से छोड़ा हमने, तो मे बी आपका इंप्रेशन डिवाइड नहीं पड़ेगा। आप बोल के जाओ वहाँ मेरे अच्छे फैमिली रिलेशन थे, उन्होंने पता लगे वो लड़ाई करके निकाला उन्होंने, फिर तो फैमिली रिलेशन गलती हो जाएंगे। वो सब कुछ कहते हैं जब भी इंटरव्यू प्रॉपर हो रहा है तो क्लियर कर देना चाहिए। इस बेस पे हमारी जो गई है रीजन ये थी छोड़ने के कारण कैसे थे, तो पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी रीजन से छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर होनी चाहिए जब अच्छी जॉब पे जा रहे हैं। सर इन्होंने फर्दर क्वेश्चन करता भी जैसे इतने भी लड़के थे, इन्होंने कहता भी जैसे इतने भी लड़कों में फेंकता तो था। नहीं, आप बोल भी सकते हैं ना कि जरूर थोड़ी कि मैं यहाँ पे लड़ूंगा। आप मेरे साथ अगर जबरदस्ती नेगेटिव बिहेव करोगे तो कोई भी पर्सन पे मतलब रूल हो जाएगा, स्ट्रेस में आएगा ये। आपको मेरे साथ नेगेटिव बिहेव कर रहा है, का दिन बहुत मार गया सर, मैं आर किसी देर वहां गिर गई एयरपोर्ट के पास, उसके बाद देखकर जॉब से लड़के के हम कंपनी में तो बोल सकते हैं ना कि अगर आप ऐसे अभी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो तो मे बी आप भी ऐसी कंपनी में आपका ऐसा माहौल है कि कंपनी में आप हमारे साथ लड़ाई करोगे। उस कंपनी का माहौल का हमें पता ही नहीं था, आप हमें पहले बता दो आपकी कंपनी का माहौल भी ऐसा है, हम आप भी और लोगों को भी बता देंगे भाई आपकी कंपनी का माहौल ऐसा है, तो कोई भी नहीं आएगा। तो बंदा तो सोचेगा ना कि इसको बोलने से पहले भी चलो रख ही लेते हैं, कुछ भी आंसर कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अभी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी कंपनीज पहले आपका मेडिकल करवाएंगी। उनके अपने डॉक्टर होते हैं, जब कोई लैब होते हैं जहाँ पे आपके टेस्ट वगैरह होते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आपको परमानेंट जॉब ऑफर दे दिया जाता है, जिसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको जॉब ऑफर लेने के बाद एक्सेप्टेंस लेटर कंपनी को देने के बाद आप कंपनी में जॉब में सिलेक्शन हो जाते हैं। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? हम एक तो बेस्ट एम्प्लॉय फाइंड कर लेते हैं, हमारी जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, हमारी कॉस्ट भी कम लगती है और उसका हम बेनिफिट भी ले सकते हैं। जिस चीज से हमें चाहिए होता है वो सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट हो जाता है और मोटिवेशन लेवल कंपनी में बढ़ा भी रहता है। ये सब बेनिफिट आपके टॉपिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टैलेंट मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन, इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं टैलेंट। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट मीन्स एप्टीट्यूड, स्किल, एबिलिटी टू परफॉर्म। ये सब कुछ टैलेंट में ही आता है। आप लोग कुछ क्या करके दिखा सकते हो, ये सब कुछ टैलेंट में आएगा। टैलेंट में जब बात करेंगे, टैलेंट कितने प्रकार के, हमने 2 प्रकार के टैलेंट इन्होंने बताए हैं। अनडिमेंशनल टैलेंट, मल्टी डिमेंशनल टैलेंट। अनडिमेंशनल के बारे में बात करते हैं। We observe that some employees are best in particular skills and abilities. कई बार हम देखते हैं कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं किसी एक फील्ड में या फिर 2 फील्ड में बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनडिमेंशनल्स। फिर उसके बाद बहुत सारी स्किल्स नहीं होती, ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, अनडिमेंशनल्स बोल सकते हैं। कुछ होते हैं मल्टी डिमेंशनल्स, अलग अलग एरिया में अलग अलग लेवल में उन्होंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट की होती है, उनको हम मल्टी डिमेंशनल्स ही बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बोले प्राइवेट जॉब में जैसे मोस्टली पर्सन होते हैं, अब भी आपने अकाउंट क्लर्क में हायर कर लिया, क्लर्क में उससे जो मर्जी काम करवा लो, कंप्यूटर्स का काम करवा लो, रिपोर्टिंग करवा लो, स्टाफिंग करवा लो, सब काम कर लेगा, इंटरव्यू सेटअप भी कर लेगा आपके लिए, न्यू लेटर टाइप करने हैं, पावर पॉइंट मीन्स आपके लिए कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, सारे काम एक काम से कर लेते हैं, उसको हम मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं। और आज के टाइम में कंपनीज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल पर्सन को हायर करने की कोशिश करती है, क्योंकि मान लीजिए किसी कंपनी में जाओगे तो आप उन्हें किस जॉब पे जा रहे हैं, प्राइवेट में कैसे होता है, बोलते हैं मैं अकाउंट्स की जॉब में गाउंस में क्या क्या कर सकते हो,
अकाउंट्स में आप बोलोगे मैं तो सिर्फ सेल परचेज कर सकता हूँ तो मुश्किल है। तो उनको चाहिए तो अकाउंट बोलते हैं कि बाई द वे हमारा पसंद ना आए तो फिर आप क्या करोगे, हमारा बैंक का रिकॉर्ड कर लोगे, हमारे रिटर्न्स को देख लोगे, रिटर्न्स फाइल कर लोगे। बाई द वे कहीं पर आपको मीन्स कंसिलेशन करनी पड़ी, रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ी तो कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो उसको मल्टी डायमेंशंस में ले सकते हैं। अकाउंट्स में जितने काम है क्या आप उसमें परफेक्ट हैं, हम आपको कभी एक जगह से हटा के दूसरी जगह बिठाएं तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये चीज चाहिए। टैलेंट में हमेशा कंपनीज मल्टी डायमेंशंस वाले एम्प्लॉइज को ही फाइंड करने की कोशिश करती है। फिर आती है टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, जब आप किसी बंदे को रिक्रूटमेंट लेके उसको ऑफर में लेटर दे देते हो तो उसके टैलेंट को यूज करते हुए जब हम अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं उसको हम टैलेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। या फिर टैलेंटेड एम्प्लॉइज को अपने साथ रिटेन रखना, ये भी टैलेंट मैनेजमेंट ही होती है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, जो अच्छे टैलेंटेड पर्सन होते हैं उनको बार बार ऑफर लेटर्स कहीं ना कहीं से ऑफर्स आती रहती है, लेकिन कंपनी में जब मैनेजमेंट हो रही है तो मतलब उसका रिटेन दी बेस्ट मल्टी डायमेंशनल एम्प्लॉइज नॉन एज ए टैलेंटेड मैनेजमेंट। जब आप किसी भी टैलेंटेड एम्प्लॉइज को अपने साथ परमानेंट रिटेन रखते हो कि वो कंपनी लीव करके ना जाए किसी मर्जी बेस पे, चाहे वो प्राइस बेस पे, चाहे आपके ऑफर्स बेस पे, चाहे वो मनी बेस पे या रिवॉर्ड बेस पे, कंपनी बेस पे, फीस बेस पे, जब भी उसको रिटेन किया जाए तो उसको हम टैलेंट मैनेजमेंट ही बोलते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट का बेनिफिट हमें क्या होते हैं, उसके बेनिफिट सिग्निफिकेंस इन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। अगर आपकी कंपनी में टैलेंटेड मैनेजमेंट होगी तो आपके और भी जो एम्प्लॉइज हैं वो भी अट्रैक्ट रहेंगे, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि इस पर्सन को हमने लगातार रखा हुआ है, पर्सन हमारे साथ 10 साल से जुड़ा हुआ है, इससे हम इतना काम करवा रहे हैं, तो मे बी वो टैलेंट्स आपके आगे टॉप मैनेजमेंट को भी अट्रैक्ट जरूर करता चला जाएगा। एम्प्लॉई मोटिवेशन, कंपनी में एम्प्लॉइज का मोटिवेशन लेवल बन रहा है कि जब ये पर्सन इतने जैसे काम कर रहे हैं, उनको इतनी सैलरी मिल रही है, कंपनी के अचीवमेंट में हिस्सेदारी भी है, तो हमें भी ये चांस मिल सकते हैं कंपनी में बेस्ट करने के लिए। इंक्रीज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अगर मोटिवेशन लेवल टैलेंटेड पर्सन को रखोगे, टैलेंट की मैनेजमेंट करोगे तो कंपनी में मोटिवेशन लेवल बन रहता है, लोग कंपनी में छोड़ के नहीं जाते। इंगेज एम्प्लॉइज। लगातार कंपनी में कहता डेवलपमेंट होती रहेगी एम्प्लॉइज की, एम्प्लॉइज जरूर रहेंगे, एम्प्लॉइज की टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगी। रिटेन टॉप टैलेंट। जब कंपनी में टॉप टैलेंट मैनेजमेंट की जाती है तो हमेशा टॉप पर्सन को रिटेन में रखा जाता है। वो किसी तरह से मर्जी मोटिवेट किया जाए, कैश से भी हो सकते हैं, उनका कंपनसेशन या फिर कोई मुआवजे वगैरह बढ़ा के दिए जाएंगे। इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर कंपनी में टैलेंट रहेगा ऑलवेज तो बिजनेस की परफॉर्मेंस भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज से काम करवाते चले जाना है, कुछ ना कुछ नया आपके लिए करते चले जाएंगे। हायर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। कई बार हमारे ऐसे क्लाइंट होते हैं कि उन्हीं पर्सन से ही सेटिस्फाइड होते हैं कि जिससे हम लोग काम कर रहे हैं उस पर्सन के साथ काम करते हैं। अगर वो पर्सन यहाँ से छोड़ के किसी और कंपनी में चला गया तो मे भी हमारे क्लाइंट्स भी जो हैं वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरी बेस पे भी रिटेन किया जाता है। टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो कंपनी के गोल देख लो। गोल करने का मतलब कि कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव है, किस बेस पे कंपनी काम कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए, कितना पैसा कंपनी खर्चना है अपने पास, तो कॉस्ट तो थोड़ी बहुत इंक्रीज करनी पड़ती है। फिर आते हैं अट्रैक्टिंग द टैलेंट। अट्रैक्टिंग टैलेंट मींस जो टैलेंटेड पर्सन को ऑलवेज अट्रैक्ट करते रहो, उनको कोई भी पोजीशन पर गिफ्ट वगैरह कुछ ना कुछ टाइम पे मिलते रहना चाहिए। फिर लिखा उन्होंने सोर्सिंग द टैलेंट। सोर्सिंग द टैलेंट मतलब होता है कि हमारी कंपनी में जितने भी सोर्स हैं, फिर जॉब मार्केटिंग है, इंडस्ट्रीज हैं, जहां से भी हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है उनसे वो बेनिफिट आपको दिलवा के दो पर्सन को आप रिक्रूटमेंट रखो। अगर बाई द वे ऐसा भी हो कंपनी में टैलेंटेड आपके जो पर्सन है वो जाना भी चाहते हैं तो आप फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उन पर्सन को हायर करो जो आपको लगता है किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट पर्सन हो, उनको हायर करने के उनका सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लेके जाओ, ट्रेनिंग देने के बाद उसको काम पे रखो। जब काम पे जा रहे तो उनकी असेसमेंट करो, अगर असेसमेंट करने के बाद उनकी फीडबैक लो, अगर बेटर रिजल्ट आ रहे हैं तो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए काम। अदरवाइज क्या है दोबारा से फिर रिक्रूटमेंट, फिर दोबारा से सिलेक्शन से कंपनी में होनी चाहिए। टैलेंटेड मैनेजमेंट की प्रोसेस यही है। बाई द वे कंपनी में कई बार ऐसा नहीं होता कि पर्सन रिटेन रहेंगे ऑलवेज, अगर जा रहे हैं तो दोबारा से प्रोसेस हो जाती है, रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन तक काम चलता रहेगा। बेनिफिट क्या होता है टैलेंट मैनेजमेंट के? टैलेंट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स कंपनी के लिए उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले कंपनी के लिए बेनिफिट्स ये होंगे कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएंगे, कंपनी की कॉस्ट कम रहेगी। अगर दोबारा से रिक्रूटमेंट करते हैं कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपनी के सेल लेवल बना रहेगा, कंपनी के क्लाइंट्स रिटेन रहेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मोटिवेशन लेवल, कम्युनिकेशन लेवल, बिहेवियर फैक्टर्स जो है सब कुछ कंपनी में एक ही लेवल पे चलते रहेंगे। मीन्स कंपनी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कभी भी इफेक्ट नहीं होता अगर कंपनी में टैलेंट मैनेजमेंट होती रहती है। फिर है बेनिफिट फिर द एम्प्लॉइज।
एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है कि हम कंपनी में जुड़े रहते हैं, तो उनका कभी भी पे स्किल्स में डाउन आता ही नहीं। उनको वो अपने जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिविजुअल बेस वो कंप्लीट होते रहते हैं। कंपनीज में एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेबर टर्नओवर जो रिड्यूस होगी, कैरियर डेवलपमेंट इजली बेस पे आके चलते चले जाते हैं। फिर है व्हाट इज टैलेंट रिटेंशन। व्हाट इज टैलेंट रिटेंशन? टैलेंट रिटेंशन का मीनिंग क्या हो गया? जब आपको टैलेंट को अपने पास रिटेन करना होता है। दोबारा से वही बात इन्होंने अलग से बनाई है। जो टैलेंटेड पर्सन हो कंपनी में श्योर किया जाए कि वो पर्सन कंपनी किसी भी तरह से छोड़ के ना जाए, उसको बोलते हैं टैलेंट रिटेंशन। इसके बेनिफिट क्या होंगे? एक तो टर्नओवर मैनेजमेंट हो जाएगी। जो एम्प्लॉइज छोड़ के इधर उधर जाते हैं वो छोड़ना बंद कर देंगे, आपकी कंपनी में लगातार काम करते चल जाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, हमारी कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि मान लो कि कंपनी टैलेंट छोड़ के जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़नी है, नए पर्सन आएंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा उनको सेटिस्फाइड होने में, हमारे वातावरण माहौल में सेटअप होने में टाइम लगता है, तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है। अगर वही पर्सन रिटेन रहेंगे तो कॉस्ट कम ही रहेगी कंपनी की। इंक्रीज मोरल, लोगों का विश्वास भी बना रहेगा। कंपनी में जितने एम्प्लॉइज हैं वो भी आपके साथ और जुड़े रहेंगे। अगर कोई टैलेंटेड पर्सन आपके साथ जुड़ा रहेगा तो कंपनी की परफॉर्मेंस पर इंडिविजुअल जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपकी बढ़ती रहेगी। टैलेंट रिटेंशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कहता है हायर दी राइट पीपल्स। ऑलवेज कोशिश कीजिए अगर टैलेंट को रिटेन करना है तो पहले से ही टैलेंटेड पर्सन को हायर कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को रख दिया, उसको ट्रेनिंग देंगे फिर उसको आगे लेके जाएंगे। ऑफर ए कैरियर पाथ, ऑलवेज पर्सन को कहता है ऑफर करते रहे, उससे कैरियर में ये डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा ना होना किसी पर्सन को रख लिया, आप बोला कि भी आपकी 1 साल 2 सैलरी बढ़नी नहीं है। आपको अगर ऑफर लेटर्स भी मिला है उसमें स्पेशल लिख दें 5 साल आपको कोई अगली जॉब पे मीन्स हमारी कंपनी में टॉप जॉब आएगी उसमें आपको नहीं फिर ऑफर करेंगे, ये कभी नहीं चाहिए। ऑलवेज उसको कैरियर का पैथ दिखाना चाहिए ताकि बंदा आगे बढ़ने के लिए सोचता रहे। वैल्यू प्रोफेशनल सिक्योरिटी, ऑलवेज बंदे को प्रोफेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड, ऐसा लगे कि हाँ जिस काम के लिए वो जॉब में आया है जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मेक एन असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल बेनिफिट, ऑलवेज फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए जरूर दिखाएं, बंदे को असेस करके दिखाएं कि आप लोग इस कंपनी में आए तो आपके ये सारे हम लोग काम, लेकिन बहुत सारी कंपनी जैसे मैं बहुत सारी फैसिलिटीज भी साथ में मिलती हैं। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, आपका कैंटीन चार्जेस हो गया, फैमिली इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं कंपनी तरफ से। ऑफर एंड ऑन डिमांड सैलरी, ऑलवेज कोशिश की थी ऑन डिमांड सैलरी पे पर्सन को रखी, जो बंदा डिमांड करना चाहता है उसी डिमांड पे उस बंदे को सैलरी में दी जाए तो रिटेंशन हो सकता है। रिकॉग्नाइज एम्प्लॉइज रिजल्ट्स, ऑलवेज एम्प्लॉइज के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखते चले जाइए, क्योंकि एम्प्लॉइज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है कि वो ट्रेड यूनियन बन गई, जब उन्होंने आपस में एक यूनियन बना ली तो एम्प्लॉइज इधर से उधर मूव होने के लिए सोच सकते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज करते जाइए कि उनके रिजल्ट्स क्या हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको पहले से रिजॉल्व करते चले जाइए। वैल्यू द टीम, ऑलवेज टीम की वैल्यू को देखिए। कंपनी में जो पर्सन इकट्ठे होकर एक टीम में काम करते हैं उनकी वैल्यू को देखिए, एक्चुअल में इन बंदों का हमें बेनिफिट है या नहीं है, नहीं है तो फिर तो लीव कर सकते हैं। अगर उनके बेनिफिट है तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी डाउन ना हो, ये चीज देखते रहेंगे। है गुड लीडर, कोशिश कीजिए कि कंपनी में हमेशा गुड लीडर होने चाहिए जो टैलेंट को रिटेन रख सके। आपका मन टॉप मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं, उसकी सपोर्ट ही नहीं है तो आप टैलेंट को कैसे रिटेन कर लोगे? अभी कोई बंदा टैलेंटेड पर्सन है, कंपनी में अच्छा काम कर रहा है, बंदा ना छोड़ के जा रहा है, टॉप मैनेजमेंट बोलते जा रहा है, जाने तो कोई बात नहीं, तो वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके गुड लीडर्स होने चाहिए तभी वो मैनेजमेंट जो है सेटअप हो सकती है। आस्क एम्प्लॉय फॉर फीडबैक, अगर कोई पर्सन जाना भी चाहता है तो उससे फीडबैक जरूर मांगिए, रीजंस क्या है क्यों जा रहा है उसके पीछे क्लियर होना चाहिए ताकि उसका सोल्यूशन भी हो जाए। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पुअर एम्प्लॉय रिटेंशन, अगर मान लो एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर सकते उसके इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ते हैं? लॉस ऑफ कंपनी नॉलेज, एक तो कंपनी की नॉलेज खत्म होती है। जो पर्सन एक पर्सन आपकी कंपनी में काम कर रहा है, न्यू पर्सन को वो सिखाने के लिए आएगा नहीं आएगा हम कह नहीं सकते। वो जो आपके साथ आगे कस्टमर आपके जुड़े हुए हैं, सिर्फ जिस पर्सन के काम जुड़े हैं वो पर्सन भी जा सकते हैं, तो कंपनी की नॉलेज खत्म होगी। इंटरप्शन ऑफ कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर की सर्विसेज इंटरप्ट होंगी। जिन लोगों से हम डील कर रहे थे, जो पर्सन अच्छी तरह से डील कर रहा था, जब वो चला जाएगा तो उसकी जगह पे टैलेंटेड पर्सन कौन आएगा जो सभी पर्सन को हमेशा रिटेन कर ले। हो सकता है जो पर्सन गया हमारे कस्टमर को भी साथ ले जाए, इंटरप्शन आ सकती है उसमें भी। रीगेनिंग एफिशिएंसी, रीगेनिंग एफिशिएंसी का मतलब जब हम नए पर्सन को हायर करेंगे, उनको लेके आएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, एफिशिएंसी लेवल डाउन होगा, मोटिवेशन लेवल डाउन होगा, क्योंकि कंपनी को टाइम लगता है उस लेवल में दोबारा पहुंचने के लिए। फिर हमारे पास आता है कि थिंक अपॉन, अगर इन चीजों को हम लोग देखते हैं तो इन चीजों को समझ के लगता है कि हाँ एक्चुअल में भी अगर कोई पर्सन जाएगा टैलेंटेड पर्सन तो उससे कंपनी का नुकसान हो सकते हैं।
एलिमेंट ऑफ टैलेंट एक्विजिशन। अगर कहता अभी टैलेंट को अक्वायर करना चाहते हो, किसी बंदे को लेकर आना चाहते हो, कैसे एलिमेंट्स हमारे पास हैं। सबसे पहले कहता प्लानिंग कर लीजिए, कोई स्ट्रेटजी बनाइए, किस बेस पे किसी एम्प्लॉइज को ऑलवेज आपने अपने साथ बूंद रखना है। इसके लिए सबसे ज्यादा टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होनी जरूरी है। दूसरा वर्क फोर्स सेगमेंटेशन, हमेशा वर्क फोर्स सेगमेंटेशन बना के रखिए भी किस किस एरिया में कितने कितने पर्सन काम कर रहे हैं और किसको कौन कौन सी जिम्मेवारी दी हुई है, ताकि आपको कोई पर्सन छोड़ के जाए, आपके पास और सारे पर्सन भी हों जिनको आप आगे ले जा सको। एम्प्लॉइज ब्रांडिंग ऑलवेज, एम्प्लॉयमेंट ब्रांडिंग मतलब आप जब कंपनी में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उसकी ब्रांडिंग सिस्टम होनी चाहिए, उसके आपको बेनिफिट्स साथ में दिखाने होंगे कि ये सब कुछ हम लोग आपको देने वाले सर्विसेज में, तब आपके पास दोबारा टैलेंटेड पर्सन आ भी सकते हैं। कैंडिडेट ऑडियंसेस का मतलब होगा भी कंपनी में जब भी जरूरत हो स्पेसिफिक रोल के लिए आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कैंडिडेट ऑडियंस का मतलब ये हो गया कि कंपनी में बहुत सारे पर्सन काम करते हैं, नॉलेज क्यों नहीं चाहिए आपको, तभी आप वायर कर सकते हो उसी टैलेंट को। अब वो नॉलेज ही नहीं है आपकी कंपनी में कौन पर्सन क्या क्या काम करते हैं, तो आप टैलेंट का भी वायर नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंपनी में कैंडिडेट के रिलेशन अच्छे बने रहने चाहिए, तब जाके कैंडिडेट को एक्वायर किया जा सकता है। मैट्रिक एंड एनालिटिक्स, ऑलवेज कोशिश कीजिए कि हम ट्रैक करते रहें किस किस फैक्टर में किस किस एम्प्लॉय ने बेटर काम करके दिया। कई बार ऐसा कंडीशन होते हैं कंपनी में, कुछ टास्क ऐसे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिए जाते हैं, उनमें से जो अच्छा निकल गया तो उसका नाम कंपनी की टॉप लिस्ट में रहता ही है। जब जरूरत पड़ती है तो कंपनी अगर कोई बाइलर पर्सन चल जाए तो उसका प्रमोशन करके उसको नई जॉब पे सेटअप कर देती है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती। फिर हमारे पास एक लिखा है कि टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप तब किसी पर्सन को जो एक्वायर कर सकते हो टैलेंट को। सबसे पहले इनबाउंड मार्केटिंग मीन्स जब आपको कंपनी के मैनेजर को गोल के बारे में पता है कि कंपनी क्या काम करना चाहती है, आप इंटरनल बेस पे उन पर्सन को हायर करोगे जो अपने पास अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। मैनेजर्स के पास पूरी लिस्ट होती है, उन्होंने गोल सेटअप किया होता है, बाई द वे अगर कोई पर्सन ना आया तो हम काम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंपनी में ऐसा तो होता नहीं है कि एक काम के लिए सिर्फ एक ही पर्सन है, उसकी जगह पे वो काम करने वाले और कितने पर्सन उन्होंने पहले से गोल सेटअप किया होता है। तो आपको इनबाउंडिंग पता नहीं चाहिए, आपके उसको कौन पर्सन जिनसे आप काम करवा सकते हो। दूसरा फिल्टरिंग एंड सिलेक्शन, सभी पर्सन की फिल्टरिंग करें। जिन लोग आपके पास लिस्ट अवेलेबल है जो पर्सन काम कर सकते हैं, फिल्टर करो कि किस किस पर्सन के कितनी कितनी एजुकेशन है, कितना कितना एक्सपीरियंस है और कौन कौन से टाइम पे क्या क्या रिजल्ट उस पर्सन के हैं। उसको फिल्टर करने के बाद आप कन्वर्जन एंड आउटबोर्डिंग, कन्वर्जन के लिए जिस पर्सन को आप सिलेक्ट कर ले रहे हैं उसको आउटबोर्डिंग प्रोसेस में लेके आइए, उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट दीजिए, उसको जॉब ऑफर लेके आप उसको अपने साथ कंटिन्यू इंप्रूवमेंट में लेके जा सकते हैं। अगर लगातार आप उसको ट्रेनिंग देते रहेंगे तो बंदा आपके साथ जुड़ के नहीं आगे काम करते चले जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर टैलेंट एक्विजिशन, बेस्ट टैलेंट क्या क्या हो सकते हैं, किस बेस पे आप टैलेंट को एक्वायर कर सकते हो। सबसे पहले लिखा कि लुक फॉर पोटेंशियल नॉट जस्ट फॉर परफॉर्मेंस, हमेशा कहता बंदे की पोटेंशियल एबिलिटी के बारे में देखिए, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मत देखिए। किस बंदे ने 8 घंटे में कितना काम करके दिया, वो कोई भी कर सकता है, जिसके पास काम करना जगह काम करके स्पीड आ जाएगी। उसकी पोटेंशियल एबिलिटीज को देखिए, प्रॉब्लम में उसने कैसे बिहेव किया, वो चीजें आपको चेक करनी जरूरी है, तब जाके कहता टैलेंट को एक्वायर कर सकते हो। प्रायोरिटी इंटरनल मोबिलिटी, ऑलवेज कोशिश करिए जो आपकी अंदरूनी फोर्स है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। टैलेंट आपको वहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि जो किसी काम में लोग काम कर रहे होते हैं टैलेंट वहीं से निकल के आते हैं। अगर आप बाहर के लोगों को देखना स्टार्ट करते हैं तो टैलेंट जो आपके अंदर कंपनी के वो भी दूर चले जाएंगे। थर्ड लिखा है कि रीथिंक हु फॉल अंडर द टैलेंट एक्विजिशन, ऑलवेज सोचते रहिए अगर आपने कुछ डिसाइड भी किया भी कौन पर्सन इस टैलेंट में आएगा, फिर भी दोबारा से सोचिए कि अगर उसकी ज्यादातर किसी और पर्सन ने कोई नॉलेज के बेस पे हमें कोई एक्सपर्ट बेस पर कोई ऐसा पर्सन तो निकल के नहीं आया जिसने कुछ अच्छा रिजल्ट हमारे पास दिए हो, तो उनके बारे में देखिए। एडवर्टाइज स्ट्रेटेजिकली, कोशिश कीजिए कि जब भी आप टैलेंट को हायर करने जा रहे हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट जो करेंगे किसी स्ट्रेटजी बेस पे कीजिए कंपनी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओपन एडवर्टाइजमेंट कर दिए कोई भी पर्सन बाहर से भी आ जाए। अगर इनबाउंड कंपनी से ही लेना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी से एम्प्लॉयज के लिए एक स्ट्रेटजी बेस्ड होना चाहिए। उन्हीं एम्प्लॉयज को पता लगना चाहिए कि आप कंपनी में इस चीज की जरूरत है, उसका बेनिफिट आपको ज्यादा हो सकता है। ये था आपके पास टैलेंट एक्विजिशन ओरिएंटेशन जो आप कह रहे हो हम लोग कल करें, ठीक है।